Hello everyone, welcome back to my channel Aviation Concepts Biome. I am Omkar, training pilot. So guys, today I welcome you in this video, and in this video we're gonna cover each and every question of IC Joshi from these six chapters. The six chapters are your atmosphere, atmospheric pressure, your temperature, density, humidity, and your winds. Okay. So guys, we'll cover each and every question of your IC Joshi because I have already told you that IC Joshi is an important book for your exam point of view. So we'll practice those important questions. And guys, I have already covered the all the theory sessions of this chapter, all these six chapters. So guys, just make sure that you watch that theory portion first, then you are coming to this question bank practice video. Okay, because otherwise you won't get anything, you will feel demotivating. Okay, so guys, just make sure that you watch the theory first, then you are coming to this. Okay, and guys, this video will help you while revising also कि मतलब कल एग्जाम है, आज रिवाइज करना है. So you can watch this video at 2x speed and you can revise all the important questions of Aishi Joshi. Okay, so let's solve questions. Just a second guys. Okay, so guys, what it says, atmosphere. Okay, first we'll solve the questions of atmosphere. Lowest layer of atmosphere is your troposphere. बेसिक क्वेश्चन है भाई. देखो, इस वीडियो में क्या करूंगा ना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. अदरवाइज जो एक्सप्लेन करने की चीज़ें होंगी उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं. ओके, एंड द पोर्शन विच वी हैव कवर्ड इन आवर theory classes. So just make sure that guys कि you watch the theory portions first because in this video I'm not gonna explain you that much. Okay, समझाऊंगा भाई, ऐसी बात नहीं है, समझाऊंगा. जब समझाने की बात होगी वहाँ समझाऊंगा, ठीक है. हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर. अब देखो इसमें क्या समझाने की बात है. 16 to 18 किलोमीटर्स वी नो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आ जाएगा. हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट पोल्स इज योर 8 to 10 kilometers. Higher the surface temperature, your higher would be the height of tropopause. The reason behind being is this. What's the reason? The reason is if your air is warm, then it will expand much. If this will expand, if this warm air will expand, then it will take much height. So that's why its answer is alpha, higher. We have covered each and everything in our theory sessions, guys, with proper reasoning, with proper notes, with free PDF notes. Okay. Height of tropopause. Tropopause की height varies with latitude. वी नो दैट कि ट्रोपोपॉज की हाइट वेरी करती है. इक्वेटर पे कुछ और है, पोल्स पे कुछ और है, लैटिट्यूड के साथ वेरी करती है. अबव 8 किलोमीटर द लोअर टेम्परेचर्स आर ओवर. अबव 8 किलोमीटर इट मीन्स 8 किलोमीटर इज योर पोलर ट्रोपोपॉज. 8 किलोमीटर पे आपका पोल्स का ट्रोपोपॉज अचीव हो जाता है. नाउ गाइस, वी हैव डिस्कस इन आवर थ्योरी सेशंस द टेम्परेचर अबव 8 किलोमीटर इज लोअर ओवर योर इक्वेटर. इक्वेटर पे टेम्परेचर कम होगा. ओके, एज कम्पेयर टू योर पोल्स अबव 8 किलोमीटर्स. Atmosphere is heated by solar radiations. ना, heat from earth surface. Yes, atmosphere जो surface की heat है उससे heat होता है, not from your solar radiations. Tropos means turning, ठीक है. CO2 and H2 are also called greenhouse gases. Troposphere is generally unstable. Why it's unstable? Because यार troposphere ना is, and this unstable word means it is associated with your good visibility and bad weather conditions. Okay, कि you will face winds, cyclones, something like that. ठीक है. So it is our troposphere is unstable and stratosphere is stable. Tropopause is discontinuous at 40 degree and 60 degree latitude is also correct, but 40 degrees are major. Okay, so its answer is bravo. Most of atmospheric mass is contained in troposphere only because we have discussed that almost 50% of the mass is covered below your 6 kilometers. Okay. Now this stratosphere extends from tropopause up to 50 kilometers. This is the next. ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है भाई, क्या समझाऊं इसमें. मिडल एटमॉस्फेयर लेयर विथ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड इनस्टेबिलिटी. टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन इज बेसिकली जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा हो with increase of your height. This is your inversion. So its answer will be your stratosphere. Stratosphere में inversion होता है और stability भी रहती है. And our troposphere is unstable. यहाँ पे inversion नहीं होता. Inversion starts from your tropopause. Mother of pearl clouds are found in stratosphere only. Temperature in IS at 17 kilometer. Guys, think.
we know the lapse rate. So 17 kilometer, it says 17 kilometer. We know the lapse rate in kilometer, 6.5 degrees Celsius per kilometer. Okay, so if you do 17 multiplied by 6.5, okay, and it will be in negatives. I'll tell you the reason, okay, don't worry. 17 multiplied by, it comes out to be 110.5. So guys, if you need to find ISA temperature, basically we know the mean sea level temperature 15 degree, 15 minus 110.5. And guys, we know कि -56.5 डिग्री सेल्सियस से तो कम टेम्परेचर ऐसे कंडीशंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, अगर इससे भी कम टेम्परेचर हो रहा है देन वी विल कंसिडर ओनली -56.5 ओनली. सो आंसर इज अल्फा. इसका आंसर जो भी आएगा, बट ये -56.5 से तो कम ही होगा ना, नेगेटिव में तो कम ही होगा. तो गाइस इसलिए इसका आंसर होगा अपना अल्फा, क्योंकि मैटर ही नहीं करता भाई कितना कम हो रहा है नहीं हो रहा. इससे कम तो अगर है तो यही आंसर होगा भाई फिर. Now we'll solve next question. What it says, by weight, see, I have told you the trick. Weight is your W. W it means 1:3 because 3 and W are same. So answer is alpha. By volume 1:4. Simple. कितने easy है भाई, ये कोई क्वेश्चन, बहुत तैयारी करी है भाई हमने. ठीक है. By volume, proportion of CO2 in atmosphere is your 0.03%. This is the important question guys, बहुत frequently पूछते हैं. इन ISA मीन सी लेवल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस. बेसिक क्वेश्चन भाई, क्या इसमें क्या क्या समझाऊं मैं इसमें. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एट अ हाइट ऑफ 20 to 25 किलोमीटर्स. आंसर इज ब्रावो भाई, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. एडिशनल ऑक्सीजन इज नीडेड व्हाइल फ्लाइंग अबव 10,000 फीट. 10,000 फीट के ऊपर एडिशनल ऑक्सीजन चाहिए होती है बिकॉज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम है बट मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. CO2 and H2 keeps the atmosphere warm because these are your greenhouse gases. And greenhouse gases क्या करती हैं, जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है और या जो अर्थ से रेडिएशंस जा रही हैं इनको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं एंड री रेडिएटेड बैक टुवर्ड्स अर्थ. सो उससे क्या होता है, वार्म इफेक्ट होता है पूरे अर्थ पे. नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स आर फाउंड इन योर मेसोस्फीयर. टेम्परेचर एट 2 किलोमीटर, हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला. Temperature at 2 km is 5 degrees Celsius. See, we know the lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer. ठीक है. So 2 for 2 kilometers it will be 13 degrees. First, what we need to find, ISA deviation. For that we need to find your ISA temperature. Okay. अब ISA temperature हमें पता है. At mean sea level my temperature is 15 and at 2 km my ISA temperature will be this. Not ISA temperature, my temperature according to lapse rate will be this. So I will subtract this to get my ISA temperature. So my ISA temperature will be 2 degrees Celsius. Now we need to find ISA deviation. ISA deviation is basically the difference between the two. Your actual minus ISA. Your actual is 5 and ISA temperature is your 2. 5 minus 2, it will give me 3. तो मेरा आंसर क्या हो गया भाई, 3 डिग्री सेल्सियस. चार्ली, इतना इजी क्वेश्चन है. Pressure at mean sea level is 1002.25. Find the ISA deviation. ठीक है. ISA deviation क्या होता है आपका, actual minus ISA. Actual है 1002.25 और ISA temperature क्या होता है at mean sea level is your 1013.25. So it will give you minus of 11, negative of 11 hectopascals. Now guys see, in the actual atmosphere temperature at 19 kilometers minus 60 degrees Celsius. This is the actual temperature, minus 60 degrees Celsius. Now guys, what will be the ISA temperature at your 19 kilometers? We know if we do the lapse rate calculation तो -56.55 से कम ही आएगा और इससे कम ISA में एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, इससे कम टेम्परेचर ISA में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो गाइस, दिस इज योर ISA टेम्परेचर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ISA डिविजन? ISA डिविजन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल माइनस ISA. योर एक्चुअल इज -60 minus ISA is your this. So just do this basic simple calculation. -60 plus 56.5. So जितनी मैथ्स मुझे आती है उसके अकॉर्डिंग टू -3.5 आना चाहिए. सो इट्स आंसर इज चार्ली. Okay. Now guys, nacreous clouds or mother of pearl clouds are the same thing. So its answer is stratosphere, upper stratosphere. ये देखो भाई, नोट्स की लाइन उठा के ला रहे हैं क्वेश्चन में भाई, नोट्स की लाइन.
Atmosphere up to 80 km has a nearly similar composition and it is known as homosphere. Its uniform composition is due to gravitation of Earth. भाई नोट्स की लाइन है, अगर तुमने मेरे नोट्स पढ़े होंगे ना तो सब इजी है, ठीक है। नोट्स पढ़ो भाई, नोट्स बहुत अच्छे नोट्स है वो। हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर मास एंड दोज नोट्स आर फ्रीली अवेलेबल, ठीक है, प्रमोशन करना पड़ता है, समझो। हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर मास इज कंटेन्ड बिलो व्हाट आई टोल्ड यू 6 किलोमीटर के नीचे। तो 6 किलोमीटर को अगर आप फीट्स में कन्वर्ट करोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 20,000 फीट। दिस इज योर अल्फा। इन जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर दिस इज योर JSA। ये देखो फिर ले आए ये लोग नोट्स का क्वेश्चन। लैप्स रेट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। नोट्स के ना इस चैप्टर के नोट्स के एंड में मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है, वहीं से उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर्स विथ हाइट कॉल्ड। भाई टेम्परेचर के साथ क्या हाइट के साथ टेम्परेचर गिर रहा है तो लैप्स रेट। इन एक्चुअल एटमॉस्फेयर लैप्स रेट कुड बी एनी वैल्यू। भाई एक्चुअल एटमॉस्फेयर में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। Tropical tropopause extends from equator to latitude 35 degrees 40 degrees. Over India, it is found at above there is a inversion. Basically, equatorial tropopause की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इन्वर्जन हो जाएगा। इंडिया में दिस हाइट इज अप्रोक्सीमेटली फाइंड नियर 16 to 16.5 kilometers. And this is almost the height of your equatorial tropopause as well. Now guys, we'll discuss questions of your atmospheric pressure, ठीक है। Winds in a low pressure is converging, we know that. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ, लो प्रेशर है भाई, देखो प्रेशर लो है तो क्या होता है भाई, इधर कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ योर बैड वेदर कंडीशंस, ठीक है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ योर गुड वेदर कंडीशंस। इन अ हाई प्रेशर एरिया विंड्स आर स्लाइटली वीक। हाई प्रेशर में विंड्स वीक होती है। भाई सब नोट्स के पॉइंट हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुमने मेरे लेक्चर्स देखे और थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी, ये सब पास इजीली हो जाओगे तुम मैट में। Flying from low to high and altimeter would see. I have explained you this concept in our theory classes. Low, high, low. Altimeter क्या करेगा, अंडर रीड करेगा, लो हाई लो, दिस इज योर इंडिकेटेड ऑल्टीट्यूड। आइसेलोबार्स, सी मैंने वहाँ बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब हमने थ्योरी क्लासेस अटेंड करी थी। तो आइसेलोबार आर लाइंस ऑफ इक्वल प्रेशर चेंज और योर प्रेशर टेंडेंसी। So its answer is Charlie, pressure tendency. What kind of barometer is an altimeter? Altimeter is your aneroid barometer. सब नोट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। रीजन बिटवीन टू लोज एंड टू हाइज इज योर कॉल। देखो भाई सीधा सीधा नोट्स का क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ठीक है। बैड वेदर एंड बेटर विजिबिलिटी, बैड वेदर एंड बेटर विजिबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ योर लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड प्रेशर, भाई देखो अब देखो इनकी वो देखो एक बार क्वेश्चन का लेवल देखो तुम। हाइट कह रहा है एक तो खुद, ठीक है, हाइट एंड प्रेशर। अब भाई हाइट कह रहा है, ASI कहीं से भी, जिसको नहीं भी पता होगा ना भाई ASI क्या होता है, ASI इतना तो पता है ऐसे स्पीड से होता है, स्पीड का हाइट से कोई लेना देना है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गए भाई, ठीक है, बचा ऑल्टीमीटर ही, तो ऑल्टीमीटर ही आंसर होगा यार। ऑल्टीमीटर ऑलवेज मेजर द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव डेटम एट विच इट्स सबस्केल सेट। भाई जिस जो सबस्केल में सेट करूंगा उसी के अकॉर्डिंग टू वो हाइट बताएगा, rather it be QNE, rather it be QNH, anything, ठीक है। Two aircraft flying at same indicated altitude same है with, this is a nice question guys, this is an important question, okay। Two aircraft flying at same indicated altitude with altimeter set to 1013.2 hectopascals. One is flying over cold air mass and other is over warm air mass, okay। Which of the two has greater altitude? किसको altitude एक्चुअल में ज़्यादा होगा? So guys इसका आंसर होगा, देखो what we have discussed कि जो वार्म एयर मास होता है ना, वार्म एयर मास का एट सम पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड, अगर आपका ऑल्टीट्यूड सेम है तो आपका जो वार्म एयर मास का जो वहाँ पर जो प्रेशर होगा ना, इट्स प्रेशर विल बी हायर, ठीक है। और अगर प्रेशर हायर है तो वहाँ का एक्चुअल ऑल्टीट्यूड भी थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इट्स आंसर विल बी योर alpha, aircraft flying over warm air mass, because at some particular height, if you're comparing the warm air mass and cold air mass,
the pressure over your warm air mass will be higher as compared to your cold air mass. Okay. The rate of fall of pressure, let me rub this. ठीक है. The rate of fall of pressure with height in a warm air mass compared to cold air mass. भाई अभी जो मैंने लाइन बोली थी ना वही आ गई है. Rate of fall of pressure with height in a warm air mass compared to cold air mass. Because भाई ये क्या पूछ रहा है? Rate of fall of pressure. We know भाई guys कि warm air mass में ना molecules are far from each other. So जो मेरा प्रेशर फॉल भी होगा ना, जो प्रेशर कम होने की टेंडेंसी होती है, दिस विल बी स्लाइटली लोअर as compared to cold air mass, because in cold air mass molecules are stick to each other, so pressure will reduce rapidly. Its answer will be less. Now guys, an increase of 1000 feet 1000 feet नहीं feet 5 घूम रहा है दिमाग में 1000 feet in elevation near the earth is associated with decrease of pressure. Basically guys, you know the concept, 1 hectopascal is approximately equals to 27 feet. So just divide this 1000 feet divided by 27, this will give you approximately to be 30s के around आएगा, तो 33 hectopascals. Okay, this is not the exact value but this is approximation. Lines drawn through places of equal pressure. Equal pressure कह दिया मतलब isobar, बात ही खत्म होगी. ठीक है. Which one is true? Trough has frontal characteristic. Basically trough क्या होता है? Trough is associated with your low pressure conditions. ठीक है. Trough of low pressure. तो low pressure में क्या होता है? We know winds back, anti-clockwise movement होता है, and we know backing is your anti-clockwise movement. So its answer will be alpha. Not alpha bravo भाई, bravo पे टिक करके alpha बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. Bravo. ठीक है. Semidiurnal pressure changes are most pronounced in. What is semidiurnal variation? Pressure changes are most pronounced in your tropics, because the reason is quite clear guys. We know the specific heat of land is lower than your specific heat of your polar regions or anything. Specific heat of land की तो बहुत कम होती है, तो ये जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. So semidiurnal variation is more in tropics. Now guys, this question we have discussed in your atmospheric pressure video. So I'll tell you one more time. Flying from Delhi to Kolkata. दिल्ली यहाँ पर है, कोलकाता इधर है. ठीक है, somewhere here. आप ऐसे फ्लाई कर रहे हो. Flying from, आपका फ्लाइंग करने का साइड दिस साइड है. दिस इज योर नोज एंड दिस इज योर टेल. At constant indicated altitude, आपका constant indicated altitude है, but experiencing a drift to starboard, you are experiencing a starboard drift. Basically, अगर लेफ्ट से विंड आ रही होगी तभी तो starboard drift आप फेस कर रहे हो. ठीक है. So guys, actual altitude will be dash vis-a-vis of indicated altitude. Now guys, if you know what is Bayer-Ballet's law, Bayer-Ballet's law says if you face the not if you put your back in the wind direction, if you put your back in the wind direction, then your left side will be your lower pressure. So if I put my back in this direction, then my this side is low pressure na, left side low pressure, and right side will be your higher pressure. So guys, यहाँ पर क्या हो रहा है? High, low, high. It means मेरा जो indicated altitude है वो ज़्यादा बताएगा as compared to your true altitude. So ये क्या पूछ रहा है? Actual altitude will be dash indicated altitude. Actual altitude क्या है indicated altitude की comparison में? So it is lower. Its answer is alpha. ठीक है. Guys, this video is best for your revision purpose also. जब आपको एंड में रिवाइज करना हो ना, यू कैन वॉच दिस वीडियो 2x पे देख के फटाफट रिवाइज कर लो और अगले दिन एग्जाम में फोड़ के आ जाओ, आग लगा दो एग्जाम में. इन सदर्न हेमिस्फेयर अराउंड अ लो प्रेशर एरिया विंड ब्लोज. सदर्न हेमिस्फेयर है भाई और लो प्रेशर एरिया है. लो प्रेशर एरिया है सदर्न हेमिस्फेयर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लो प्रेशर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर के अराउंड ये क्लॉकवाइज घूमती है. ठीक है, नॉट क्लॉकवाइज. कंफ्यूज नहीं होना भाई. देखो ऐसे करना है हमें. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लो प्रेशर में क्या घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज. एंड हाई प्रेशर में कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज. सो इन सदर्न हेमिस्फेयर इन योर लो प्रेशर it will blow in your anti-clockwise, not anti-clockwise, in your clockwise direction. Okay,
and in your high pressure it will blow in your anti-clockwise direction. So its answer will be your this clockwise direction, southern hemisphere. Altimeter of aircraft on ground reads aerodrome elevation. Aerodrome elevation पढ़ रहा है भाई, तो it says QNH. So its answer is alpha. Instrument for recording pressure is your barometer. Okay. Poor visibility. Poor visibility is associated with your high pressure systems. On either side, perpendicular to the rise, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है either side of trough. Trough के इधर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है. If you are going away from the trough, then your pressure will increase. Trough is like your tongue-shaped structure. Fall of pressure with height. Pressure height के साथ ज़्यादा जल्दी कहाँ गिरेगा? In your cold airs, because molecules are close to each other. Guys, these questions are basically your tab. एक टेबल बताई थी ना मैंने, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. ये बेसिकली फ्रेक्टोलॉजी वाले क्वेश्चंस है प्योर, ठीक है. सो गाइस विल नॉट डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो बिकॉज दीज आर प्रॉपरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. एक टेबल दी थी मैंने आपको नोट्स में, उस टेबल के ऊपर है सारे क्वेश्चंस, ठीक है. So guys, you can just watch that table and you can verify your answers. Okay, I am not discussing these questions in this video. Now guys, this temperature, ठीक है, we'll discuss the questions of temperature. Diurnal variation of temperature is greatest when wind is calm. देखो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे नोट्स का, ठीक है, वहाँ हमने सब डिस्कस किया है. Diurnal variation of temperature is maximum over land. अभी हमने डिस्कस किया था कि लैंड का ड्यूरनल वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है. ऑन अ क्लियर डे द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस इज 5-6, आई गेस 5-6 इज द आंसर. एल्बेडो, व्हाट इज एल्बेडो? एल्बेडो इज योर रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अर्थ एंड सबसे मैक्सिमम किसकी होती है? स्नो की, विच इज 80%. ड्यूरिंग डे द एम्बियंट टेम्परेचर इज दैन ग्राउंड. बेसिकली जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर है, डे टाइम में क्या होगा भाई? सब रेडिएशंस ग्राउंड पे आ रही हैं, सोलर रेडिएशन सारी ग्राउंड पर आ रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होगा. लेकिन जो एम्बियंट टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर है सपोज ग्राउंड के ऊपर, वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज इस एज कम्पेयर टू द ग्राउंड कम होगा. ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ओवर ओशियन इज, देखो यार, ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इतना पता है, लैंड से तो ज़्यादा नहीं होता, लैंड से कम ही होता है. तो इट्स आंसर इज चार्ली, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस. 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दिस इज योर लैंड का होता है ये, ठीक है. तो लैंड से ज़्यादा तो हो नहीं सकता. सो इट्स आंसर इज चार्ली. एट अ कोस्टल स्टेशन द ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, कोस्टल स्टेशन पे इट डिपेंड्स ऑन विंड डायरेक्शन. स्नो सरफेस, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस दैट, 80%. एल्बेडो, amount of solar radiation received per unit area is your insolation. This is the definition of insolation. Solar radiation received by earth is, basically I have told you solar radiations कहाँ से आती है? सन से. Hotter the body, shorter is the wavelength, so short wave. Rise in temperature of a surface is proportional to its specific heat. कैसे होता है भाई? जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कम, मतलब कम होती है. सो इट्स आंसर इज इनवर्सली. Specific heat of land is lower than your water. Minimum temperature is reached at, we have discussed that, half to 1 hour after dawn. भाई मैं ना जितनी फास्ट अभी करा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, मैंने उतने ही डिटेल में इनके लेक्चर्स कवर किए गाइस. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच द लेक्चर्स फर्स्ट, ओके. अदरवाइज यू विल फील लाइक कि भाई क्या बोल रहा है, ठीक है. अगर कोई नया नया बच्चा देख रहा है वो सोचेगा भाई क्या करवा रहा है. गाइस, I have covered each and everything in detail in my lecture videos. This is the practice video, ठीक है. And I'll cover 6 chapters in this, okay. So अगर मैं एक एक क्वेश्चन को इतना डीप में जाके समझाऊंगा तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी यार. An air parcel is lifted till it gets saturated. The temperature attained by it is called dew point. Dew point पे saturated हो जाता है, ठीक है. Cloudy nights are more warmer because heat क्या हो जाती है उसमें, ट्रैप हो जाती है. हीट ट्रैप हो जाती है तो वो वापस री रेडिएट कर देता है क्लाउड बैक टूवर्ड्स योर अर्थ. वाटर वेपर इज ट्रांसपेरेंट टू terrestrial radiation. It is partially transparent to your terrestrial radiations.
हायर द टेम्परेचर, अभी बताया था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी इसकी होगी शॉर्ट हो जाएगी वेवलेंथ. Air is a bad conductor of heat. A parcel of air can therefore be regarded as insulated from the environment. We know air is a poor conductor of heat. Yeah, it's true. A parcel of air can therefore be regarded as insulated from environment. Warmer the earth, that should be the nocturnal radiations. ठीक है, जितनी ज़्यादा वार्म है अर्थ उतनी क्या होगी, इंटेंस होगी आपकी नॉक्टर्नल रेडिएशंस. नॉक्टर्नल रेडिएशंस बेसिकली और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एट द टाइम ऑफ नाइट. ठीक है. हीट क्या था भाई, सम टोटल था. टेम्परेचर क्या था, एवरेज था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. Solar radiation consists of about 46% of your IR. This is your infrared. This is your Boltzmann law. We have discussed this in your temperatures chapter. So its answer is T4. Intense radiations are emitted by hot bodies. Simple logic है यार. Wavelength of most intense radiation is inversely proportional to its absolute temperature. डिस्कस कर रखा था हमने ये. एंड दिस इज योर वीएन्स लॉ. ठीक है, ये एक वीएन्स लॉ करके भी हमने पढ़ा था. राइटिंग खराब है मेरी, राइटिंग पे तो कमेंट आना ही नहीं चाहिए. ठीक है, देख लो भाई, राइटिंग पे कमेंट मत करना कोई. वीएन्स लॉ. Hot bodies like sun radiate short waves. Okay. -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस. ट्रू, ये मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आपको. सरफेस टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट हाइट ऑफ 1.25 मीटर्स अबव द ग्राउंड. ये देखो सब नोट्स के क्वेश्चन है. स्टेवन स्क्रीन का डोर कहाँ होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन. लिक्विड यूज इन मिनिमम थर्मोमीटर इज योर एल्कोहल. ठीक है, एल्कोहल यूज करते हैं. गलत मत सोचो, गलत मत सोचो. Now guys, we'll discuss your air density. This is our chapter number 4 for today. This will discuss questions of this air density. Density is dash at poles then equator. भाई poles पे temperature कम है, temperature कम है तो क्या होगी, density ज़्यादा होगी at surface level. So density is higher at poles than equator. अब 8 किलोमीटर क्या हो गया भाई, ट्रोपोपॉज हिट हो गया, चीज़ें डिफरेंट हो गई. अब क्या है भाई, इक्वेटर पे इस टाइम पे टेम्परेचर कम है और पोल्स पे इस टाइम पे एज कम्पेयर टू इक्वेटर इस पर्टिकुलर हाइट पे टेम्परेचर ज़्यादा है at poles. So above 8 kilometer density is lower at poles than equator. The altitude in ISA at which air density is same as the observed density. The altitude in which ISA, हाँ मतलब basically your density altitude. Density altitude क्या होता है, your current altitude in prevailing conditions in your standard atmosphere. Prevailing conditions में standard atmosphere पे altitude क्या होगा, that is your density altitude. Density is usually expressed as ग्राम पर मीटर क्यूब. क्यूबिक होता है, मैंने बताया था. डेंसिटी इज योर मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद क्यूब्स. ठीक है, क्यूबिक होता है. हायर डेंसिटी मीन्स लोअर, हायर डेंसिटी ऑल्टीट्यूड मैंने उस दिन बताया था. डेंसिटी ऑल्टीट्यूड है तो डेंसिटी लोअर होगी, क्योंकि मैंने बताया था डेंसिटी ऑल्टीट्यूड को आप ऑल्टीट्यूड की तरह ट्रीट करो. अब हाई ऑल्टीट्यूड होता है तो हाई ऑल्टीट्यूड पे भी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. Guys, I have discussed these mnemonics also in my lecture videos, so just make sure that you are watching the lectures. Okay, lectures पहले देखो उसके बाद यहाँ पर आओ, otherwise you will get confused. For given pressure and temperature, moist air, we have covered that कि moist air is only consists of your H2O and its molecular weight is approx 18 grams. अदर एट द सेम एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 32, इसका 28 होता है, so it's lower. डेंसिटी इसकी होती कम होती है. एयर इज लेस डेंसर. एयर किस में कहाँ डेंस कम होती है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फार. वार्म एयर में मॉलिक्यूल्स आर फार. इन द केस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी मॉलिक्यूल्स आर फार. सो ऑल ऑफ दिस. डेंसिटी ऑल्टीट्यूड में भी डिफाइंड एज द ऑल्टीट्यूड इन अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. देखो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर तो हमारा कंफर्म था. ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में प्रिवेलिंग डेंसिटी अकर्स. प्रिवेलिंग डेंसिटी, अगर मैंने यहाँ पर शायद मैंने क्या बोला था, प्रिवेलिंग कंडीशंस बोला था ना इधर. सो गाइस जस्ट करेक्ट इट, प्रिवेलिंग डेंसिटी. ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में प्रिवेलिंग डेंसिटी जहाँ कर हो जाए वो आपका डेंसिटी ऑल्टीट्यूड है. नाउ गाइस विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमिडिटी. सो what it says, ratio in percentage between the amount of water vapor present in the air to the amount of water vapor that it can hold. Basically this is a ratio for HMR to your SMR. So this ratio is your relative humidity.
temperature to which air must be cool at constant pressure to become saturated is called your dew point. This is the definition of a dew point directly taken from the notes. ठीक है. फ्री एयर टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इक्वल. देखो भाई ये पॉइंट भी ना हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है. ओके, सो it will be achieved at your when your relative humidity is 100%. On a rainy day compared to sunny day, the length of runway required will be more. Why? ये पॉइंट भी हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है. ठीक है. The reason behind this because on a rainy day there will be moisture more. Moisture ज़्यादा होगा. अगर moisture ज़्यादा होता है तो molecules are far. ठीक है, molecules far हैं तो उधर क्या होगा, molecules are far from each other, so for attaining some speed you need to use more runway length. Spread is the difference between your free air temperature and your dew point. स्प्रेड की डेफिनेशन भी हमने कवर करी थी हमारे लेक्चर वीडियोस में. स्प्रेड विल बी लीस्ट व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, क्योंकि भाई जब एयर सैचुरेट हो रखी है, सैचुरेट हो गई है, ठीक है, सो योर ड्यू पॉइंट, वी आर वेरी क्लोज टू योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड योर नॉर्मल टेम्परेचर, तभी तो बारिश होती है. मैंने आपको ये भी बताया था कि टेम्परेचर 30 है और ड्यू पॉइंट 29 है, सो यू कैन एक्सपेक्ट रेन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स. ओके, सैचुरेशन होने ही वाला है. सैचुरेशन वेपर प्रेशर ओवर वाटर इज लेस देन आइस. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था उसमें. एज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता है, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, कैपेसिटी विल इंक्रीज, नाउ इट कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि अब और ज़्यादा मुझे वाटर वेपर चाहिए सैचुरेट करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है. Actual amount of water vapor contained in a given volume of air at a given temperature. Actual amount of water vapor. So actual amount of water vapor, actual amount कितना है? So this is your absolute humidity. Okay. HMR, this is direct point from your notes. HMR remains constant when air is lifted adiabatically. Adiabatically lift हो रही है मतलब without exchange of heat. अगर heat का exchange नहीं हो रहा है, so your water vapor के जो molecules थे, they will remain same. And HMR क्या होता है? Current molecules प्रेजेंट इन दैट पार्सल ऑफ एयर. ठीक है, अभी के अभी उस मॉलिक्यूल्स में, उस पार्सल ऑफ एयर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अगर एयर लिफ्ट हो रही है, एयर ऊपर जा रही है और एडियाबेटिकली कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो your HMR will also remains constant because HMR depends on only and only on water vapor molecules. So its answer will be Bravo. It is the lowest temperature which air would attain by evaporating water. वाटर को इवेपोरेट करने से हमें क्या मिलता है? योर वेट बल्ब टेम्परेचर. ठीक है, we have understood this in our lecture video with an example of your desert coolers. ठीक है, desert coolers work on this principle. Now guys, we'll discuss our last chapter, winds. Okay, so this chapter is quite big and it's question and it's very important as well. Okay, बहुत अच्छा चैप्टर है. In southern hemisphere if an observer faces wind, ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, it faces wind. So सदर्न हेमिस्फीयर का केस है. सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अगर मैं अपनी विंड को अपने बैक पर रखूंगा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये फेस कर रहा है, सो योर लो प्रेशर विल बी एसोसिएटेड टू इट्स लेफ्ट ओनली. ठीक है, क्योंकि भाई ये सामने से फेस कर रहा है विंड्स को. सपोज अगर आपको इस क्वेश्चन को दूसरे टर्म्स में समझना है, तो सपोज यू आर taking the winds at your back. Now what Bayes-Bellot law says? Bayes-Bellot law says in southern hemisphere your low pressure will be to your right if you put your back into the wind. Now in this case this person is facing winds, face कर रहा है तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा. ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, बस इसने बैक की जगह क्या बोल दिया, फेस कर दिया है. सो इट्स आंसर विल बी योर लेफ्ट. In northern hemisphere due to rotation of earth winds are deflected to your right. Reason behind this your GF, not that GF. ठीक है, it is your geostrophic force. Local winds follows Bayes-Bellot's law. No, local winds follow नहीं करती भाई Bayes-Bellot's law.
कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द राइट डायरेक्शन, राइट ऑफ विंड डायरेक्शन, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स हमेशा राइट साइड में एक्ट करता है। जियोस्ट्रोपिक फोर्स विंड इज ड्यू टू द बैलेंस, किस किन दो के बीच में बैलेंस अचीव करते हैं जियोस्ट्रोपिक फोर्स में बेसिकली, और जियोस्ट्रोपिक विंड के लिए किन दो फोर्सेस के बीच में हम बैलेंस अचीव करते हैं, योर जीएफ एंड योर पीजीएफ। सो इट्स आंसर विल बी योर जीएफ को हम और क्या बोलते हैं, जीएफ को बहुत कुछ बोलते हैं वैसे तो तुम अपनी अपनी लैंग्वेज में, बट मैट की टर्म्स में कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं जीएफ को। आंसर इज चार्ली, ठीक है। बहुत गंदे जोक्स मारता हूँ मैं, आई नो। कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, वी हैव डिस्कस दैट कि यार कोरियोलिस फोर्स एंड जियोस्ट्रोपिक फोर्स आर द सेम थिंग, ठीक है। वी हैव डिस्कस दैट जियोस्ट्रोपिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर साइन ऑफ लैटिट्यूड, सो साइन 90 जो कि मैक्सिमम होता है पोल्स पे, सो ये मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल्स पे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। जियोस्ट्रोपिक रूल ब्रेक्स डाउन एट इक्वेटर, व्हाई? इक्वेटर पे क्यों होता है ब्रेक डाउन, गाइस टेल मी इन द कमेंट। चलो बता ही देता हूँ यार, क्या याद रखोगे तुम, ठीक है। जियोस्ट्रोपिक विंड की जो स्पीड होती है ना भाई, जियोस्ट्रोपिक विंड, ठीक है, की स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो अगर ये साइन 0 हो गया तो साइन 0 1/0 विच इज इन्फाइनाइट। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट विंड स्पीड है इक्वेटर पे, इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं ना। सो दिस रूल ब्रेक्स डाउन एट इक्वेटर एंड इट इज वेरी मिनिमल टू योर 15 डिग्रीज अप टू 15 डिग्रीज ऑफ इक्वेटर ऑन बोथ साइड्स। फोहन विंड्स आर योर ड्राई एंड वार्म, कोल्ड और ह्यूमिड कौन सी, कोल्ड कौन सी होती है, कैटाबैटिक विंड्स। फोहन विंड्स आर योर ड्राई एंड वार्म। विंड स्लाइडिंग डाउन अ हिल ड्यूरिंग नाइट, अब भी नाम लिया था भाई, कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक इज द concept ऑफ नाइट एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन, दिस इज कोल्ड। एनामेटिक इज योर केस ऑफ डे एंड इट इज योर हॉट एंड इट इज गोइंग अप विद द ऑनसेट ऑफ सी ब्रेज। सी ब्रेज के ऑनसेट होते ही क्या होगा भाई, सी ब्रिज में क्या होता है, सी ब्रिज में एयर इज कमिंग फ्रॉम योर सी टुवर्ड्स योर लैंड, सी से लैंड की तरफ हवा आ रही है। अब सी से लैंड की तरफ हवा आ रही है तो भाई यहाँ पे क्या था अपना, हाई प्रेशर था, इधर क्या था, लो प्रेशर था, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ का क्या होगा, प्रेशर तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रेशर विल फॉल, नॉट प्रेशर, टेम्परेचर, माई बैड, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टेम्परेचर कम हो जाता है बट आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज भाई वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स भी तो बढ़ रहे हैं, सो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज, सो इट्स आंसर विल बी फॉल और राइज विच इज आर अल्फा। Sea breeze is a concept of day and it dies off at night. If an aircraft in northern hemisphere flies from high pressure to low pressure, just a second, high से low में fly कर रहा है भाई, so obviously भाई northern hemisphere का case है। Let's consider the wind from left. First from the left, अगर left से wind आ रही है, if I put my back here, अगर मैं अपनी बैक यहाँ रखता हूँ, so my left side, it means this side will be your lower pressure and this side will be your higher pressure. ओके, सो मतलब इसमें अपना कॉन्सेप्ट बैठ गया है। सो अगर मेरे लेफ्ट से विंड आ रही है, सो आई विल फेस योर स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट, सो आवर आंसर इज अल्फा, स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट, एज सिंपल। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफ यू एक्सपीरियंस पोर्ट ड्रिफ्ट, सी पोर्ट ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस है, इट मीन्स विंड्स आर कमिंग फ्रॉम योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, विंड्स आर कमिंग फ्रॉम योर राइट, पोर्ट ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो तो। So guys, if you put your back in the direction of wind, so your left side will be your lower pressure and your right side will be your higher pressure. तो आपका ऑल्टीमीटर क्या रीड करता है, लो हाई लो, ऑल्टीमीटर विल अंडर रीड। ओके, दिस इज योर इंडिकेटेड ऑल्टीट्यूड जो उसमें दिखा रहा है ऑल्टीमीटर में। लाइंस ऑफ कांस्टेंट विंड स्पीड ड्रॉन ऑन वेदर चार्ट्स आर योर आइसोटैक्स। स्क्वल्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम गस्ट बाय योर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। Gust is of short duration. Squall lasts for more than a minute. Gust lasts for few seconds only. Thermal wind speed is the wind because of thermals. Nah, the wind which must be added vectorially to lower geostrophic wind to obtain upper level geostrophic wind. Okay, this is a definition of thermal winds. On a weather map, if isobars are closely packed, isobars agar closely packed hai, the surface wind are likely to be strong and will blow parallel to isobars. Anabatic wind is a concept of your day.
एनाबैटिक विंड इज स्ट्रॉन्गर देन कैटाबैटिक, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा भाई हमने, सो फॉल्स। कैटाबैटिक विंड इज अ डाउन स्लोप कोल्ड विंड ड्यू नॉक्टर्नल कूलिंग, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, नॉक्टर्नल कूलिंग कब होगी आपकी, नाइट में, सो इट्स ट्रू। Katabatic wind occurs due to sinking of air down the hill slope. Yes, true. Anabatic wind occurs due to downward movement of air along valley. No, it is your upward movement. ठीक है, upward movement होती है ड्यू कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से आपका हीट एक्सचेंज होता है एंड दिस एयर इज गोइंग अप, सो इट्स फॉल्स। Sea breeze is stronger than land breeze. Absolutely true. Guys, the reason behind this is क्योंकि ड्यूरिंग योर डे टाइम आपको पता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर नाइट टाइम, बेसिकली चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, नाइट टाइम में आपका यही जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो होता है कम, इसलिए आपके सी ब्रेज स्ट्रॉन्गर इन एज कम्पेयर टू योर लैंड ब्रेज। विंड ब्लोज क्लॉकवाइज अराउंड द लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज नो, एंटी क्लॉकवाइज इट्स फॉल्स। Wind blow clockwise around the low in north southern hemisphere. Yes. So its answer is true. Wind blows anti-clockwise around the low in northern hemisphere. Yeah, it's true. Wind blows anti-clockwise around the low in southern hemisphere. Southern hemisphere का केस है लो के अराउंड क्लॉकवाइज घूमती है भाई, तो फॉल्स। Resultant wind that blows under the influence of pressure gradient force, geostrophic force and cyclostrophic force. ऐसी तो एक ही विंड है जो इन तीनों प्रेशर के इन्फ्लुएंस से ब्लो करती है एंड दिस इज योर ग्रेडियंट विंड एंड इट ब्लोज अलोंग पैरेलल टू योर कर्व्ड आइसोबार्स। ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा। कर्व्ड आइसोबार, जियोस्ट्रोफिक विंड इज पैरेलल टू योर स्ट्रेट आइसोबार, स्ट्रेट एंड पैरेलल आइसोबार्स। ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम डे टू नाइट फॉर एन आइसोबैरिक पैटर्न द सरफेस विंड बैक्स एंड वीकन। या ट्रू। ठीक है, सरफेस विंड बैक्स और वीकन हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वीक हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स बैकिंग। We have discussed this in our complete lecture. The wind with spiral inward a counterclockwise direction in northern hemisphere. Anti-clockwise direction है तो low pressure area. Now guys, this is the numerical question of your thermal winds. Now, how to solve this? Lower level wind is 050. I am considering we know 050 कहाँ होता है, from at your right side and 230 कहाँ होगा on your left side. ठीक है, अभी देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कार्डिनल डायग्राम के अकॉर्डिंग। 050 इज योर दिस, ठीक है, समवेयर हियर। सो आपकी विंड ऐसे आ रही है एंड 230 इज योर दिस, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, अभी मैं ना इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा, आई ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। लोअर लेवल विंड इज 050, यहाँ से आ रही है 050 ऑफ 10 नॉट्स। ठीक है, अपर लेवल विंड दे दी एंड वी नो कि लोअर से अपर जाने के लिए वी नीड थर्मल विंड्स, वही हमको फाइंड करना है। सो 230 ऑफ 5 knots. Now guys see, this is the stronger wind and this is the weak as compared to this. It means I can say and see the direction of the wind is 230. अब डायरेक्शन भी यहाँ से जो विंड आ रही है उसको इससे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग कितना होना पड़ेगा, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, सी if suppose your wind is coming from 230 or 15 knots, if I say you like this, ठीक है, अगर मैं 15 में से 10 माइनस करूंगा आई विल गेट 5 नॉट्स, मेरी कंडीशन मीट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो अपर लेवल विंड पे कौन सी विंड आती है जो कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगी, फ्रॉम दीज टू द वन विच इज स्ट्रॉन्गर विल कम ओवर योर अपर विंड्स, सो इट्स आंसर विल बी 230 ऑफ 15 नॉट्स। ओके, आई होप गाइस यू आर वेरी क्लियर। चेंज इन विंड डायरेक्शन फ्रॉम योर 310 टू 020, बेसिकली क्या हो रहा है, 310 यहाँ था, 020 यहाँ था, क्लॉकवाइज चेंज है, इट मींस वेयरिंग। 270 टू 250, 270 यहाँ पे, 250 यहाँ पे, सो एंटी क्लॉकवाइज, इट इज योर बैकिंग। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, लेट मी पुट अ चार्जर ऑन माय दिस पेन, बैटरी कम हो गई। ओके,
So its answer will be your 2702 250 is backing. Sudden change in wind speed. Sudden change है तो यार gust होगा, squall होगा. Sudden change in wind speed from 10 knots to 30 knots and then to 15 knots. मतलब पहले स्पीड बढ़ी फिर वापस से कम हो गई. सो ये ऐसा किस में होता है? दिस इज योर गस्ट. बिकॉज स्क्वेल में दिस अगर ऐसा हुआ भी है सो इट विल लास्ट फॉर मोर देन अ मिनट, बट अचानक ये वापस स्पीड कम हो गई. सो दिस इज द केस ऑफ योर गस्ट. गेल तो हो ही नहीं सकता भाई. हमने पढ़ा था क्रिस गेल कितने रन मारता है? 34 रन. दिस इज द ट्रैक 34 नॉट्स. इफ योर विंड स्पीड इज मोर देन 34 नॉट्स then this will be your gale. सडन चेंज इन विंड स्पीड फ्रॉम 10 नॉट्स टू 30 नॉट्स. ठीक है, 10 नॉट्स से 30 नॉट्स विंड हो रही है एंड इट लास्ट फॉर मोर देन अ मिनट. सो दिस इज द केस ऑफ स्क्वॉल. ओके. Significant wind shear is generally associated with thunderstorm or line squall. Yeah, absolutely true. Cyclostrophic wind gives a good approximation of the 2000 wind in intense tropical storm. Yes, true. Guys, cyclostrophic wind is associated with your centripetal force or your pressure gradient force. Okay, it is not associated with your geostrophic force, centripetal or pressure gradient force. And guys, in the intense tropical storm, your wind speed is very fast, and this is linked to your 2000 feet winds. 2000 फीट पे हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है. ठीक है, सो यहाँ पर जियोस्ट्रॉपिक फोर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है. इसलिए गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. साइक्लोस्ट्रॉपिक विंड इज गिव्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन. Rotor clouds have extremely turbulent flying conditions. Yes, absolutely true. Guys, we'll discuss this type of cloud in your clouds chapter. ठीक है भाई. वैसे देखो एक चीज बताओ, रोटर क्लाउड्स नाम से ऐसा ऐसा लग रहा है किसी राक्षस का नाम है. ठीक है, तो turbulent flying conditions तो होंगी ना भाई. So its answer is true. Friction causes winds to flow across isobar over land. लैंड में कितना चेंज आता है और ओवर सी कितना चेंज आता है. सो ओवर लैंड इट इज 20 डिग्रीज एंड ओवर सी इट इज 10 डिग्रीज से कम होता है. इफ योर साउथ इज वार्मर देन नॉर्थ, इट मीन्स इट सेज योर साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है. साउथ क्या है? वार्म है. ये क्या है? हॉट है. ठीक है, एंड ये क्या है? कोल्ड है. From surface up to higher levels, then the dash wind will strengthen the height. बेसिकली पूछ रहा है, ये है ना, बात कर रहा है घुमा फिरा के थर्मल विंड्स की. ठीक है, थर्मल विंड्स में हमने क्या लॉ पढ़ा था? थर्मल विंड्स में हमने पढ़ा था कि इफ थर्मल विंड ब्लोज पैरेलल टू आइसोथर्म, ठीक है, अगर आइसोथर्म के पैरेलल ये ब्लो करती है, सो योर लेफ्ट साइड विल बी योर कोल्ड प्रेशर एंड राइट साइड विल बी योर हॉट. ठीक है, मतलब नॉट कोल्ड प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर, एंड दिस इज योर राइट साइड विल बी योर हॉट टेम्परेचर. सो लेफ्ट साइड क्या है? कोल्ड टेम्परेचर है. अब इसको ये होने के लिए मेरा लेफ्ट साइड क्या होगा? दिस विंड हैज़ टू बी वेस्टर्ली, क्योंकि जहाँ से विंड आती है वहाँ से हम विंड डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं. सो इट्स आंसर इज योर वेस्टर्ली. Gradient wind is dash of the geostrophic wind in an anticyclone. Anticyclone is associated with your high pressure. अब हाई प्रेशर में मैंने बताया था दिस इज योर ओवर एस्टिमेट. हाई प्रेशर में हाई होता है, लो प्रेशर में लो होता है. गेल, वही भाई, गेल आ गया मतलब 33-34 रन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. 34 नॉट्स. सो इट इज वेरी क्लोज टू 33. सो दिस इज योर आंसर इज चार्ली. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थर्मल विंड इज पैरेलल. सी, दिस इज द पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था. थर्मल विंड इज पैरेलल टू योर आइसोथर्म्स with a low value to its left. Its inertial flow is your anticyclonic in both the hemisphere. This is the point directly from the notes. Okay. This is the, I guess this is the same question which you have discussed above. So इसका आंसर क्या था भाई? यही था ना, 23015 knots. हाँ, we have discussed this. Okay, so I am not discussing it again because we have discussed it above. Okay, repeat हुआ ये question. So guys, this is all this lecture has, and we have covered almost your 6 chapters IC Joshi questions. And guys, now I will make more lecture videos similarly like 5-6 chapters. Then we'll discuss IC Joshi questions of those chapters. Okay, this will be a strategy because IC Joshi important hai. Guys, if you say I will also include questions other than IC Joshi as well.
guys, you know I'm working very hard for you. I'm preparing material for you, and I'm giving you at free of cost. And guys, don't worry about this PDF also. I will provide this PDF in notes as well. Okay, and not in notes, in your description, just like how I provide notes. Okay. So guys, just support me and don't forget to like, share and subscribe, because your each like and your each share matters to me. So guys, bye bye, take care, see you.